السلام علیکم، جی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ماجد علی خان اور میں ہوں زارہ شفیع۔ ہیڈلائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے بھارتی حکمراں جماعتوں کی زبان درازی حد سے بڑھنے لگی ہے۔ شان رسالت مآب میں گستاخی پر عالم اسلام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ کویت، ایران، قطر نے بھارتی سفیر کو طلب کر کے احتجاجی مراسلہ تھما دیا۔ عمان اور سعودی عرب کے علماء نے بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم کی حمایت کر دی ہے، جبکہ پاکستان نے بھارتی سفیر کو طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ جی ہاں، دنیا کے دیگر مسلمان ممالک اور سوشل میڈیا پر شدید رد عمل سے مودی سرکار گھبرا گئی۔ خانہ پوری کے لیے گستاخ نوپور شرما اور نوین کمار کو پارٹی سے معطل اور برخاست کر دیا گیا ہے۔ بھارت میں برسر اقتدار انتہا پسند ہندو جماعت کی ترجمان کے گستاخانہ بیان پر عرب ممالک میں غصے کی لہر۔ قطر اور کویت کے بعد ایران نے بھی بھارتی سفیر کو طلب کر کے شدید احتجاج کیا اور سعودی عرب کی جانب سے بھی بھارت میں پیغمبر اسلام کی شان اقدس میں گستاخی کی پرزور مذمت کی گئی۔ سعودی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حالیہ عمل سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ ایسے واقعات سمیت مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا بھارتی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے عہدیداروں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت کی جانب سے گستاخی کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کے عمل کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی بھارتی مسلمانوں کے مذہبی حقوق سمیت ان کی شناخت اور تہذیب و تمدن کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ مسجد نبوی انتظامیہ کی جانب سے بھی خاتم النبیین کی شان میں گستاخی پر شدید مذمت کی گئی۔ جنرل پریزیڈنسی مسجد نبوی سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ایک گھناؤنا فعل ہے۔ مسجد نبوی کے ائمہ کرام، مبلغین، علماء کرام اور ملازمین گستاخی رسول کرنے والوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بی جے پی کی ترجمان کے گستاخانہ بیان پر بھارت اور بیرون ملک بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم بھی زوروں پر ہے۔ تو دوسری جانب پاک فوج نے بھارتی جماعت بی جے پی کے رکن کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی شدید مذمت کی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارتی حکام کی جانب سے گستاخانہ بیان کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ یہ افسوسناک عمل مسلمانوں کے خلاف شدید نفرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارت میں مسلمانوں اور اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھارتی حکمراں جماعت بی جے پی رہنماؤں کے توہین آمیز بیانات کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کا استحصال ناقابل قبول ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ وقت آ چکا ہے کہ اقوام عالم بھارت میں ہندوتوا کو روکیں۔ مودی کا بھارت اقلیتوں کے لیے جہنم بن گیا ہے۔ بی جے پی رہنماؤں کی جانب سے شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر شازیہ مری نے عالمی برادری سے بی جے پی رہنماؤں کے بیانات کی مذمت کا مطالبہ کر دیا۔ کہا، پڑوسی ملک ہمارے جذبات سے کھیلے گا تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ مذمت بھی کم ہوگی۔ اس بیان نے جو تکلیف پہنچائی ہے مسلمان پاپولیشن کو اور دیگر لوگوں کو جو کہ انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، تمام دنیا کے جو باشندے ہیں وہ آج اس کے اوپر بڑی وضاحت سے مذمت کا اظہار کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس کے اوپر بڑا اپنا سخت رد عمل دیا ہے کہ جو بات ہے وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ بی جے پی جو ہے وہ اپنا ہندوتوا جو ایجنڈا ہے اس کے تحت جو مائنورٹی کمیونٹیز ہیں اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، ظلم کر رہی ہے، اور زیادتی کی، بربریت کی نئی مثال بھارت کی بی جے پی حکومت نے قائم کی ہے، جس کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں جو مسلمان ہیں دنیا کے اندر، وہ تمام اس وقت تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ تمام ملکوں نے اس پر اپنی تشویش کا اور غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ یہ بیان پاکستان سمیت پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، قابل برداشت نہیں ہے۔
कौमी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर ज़रूरी तबसरे से हर सूरत गुरेज किया जाए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का नस्ट में सेमिनार से खिताब। ISPR के मुताबिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी के तहत इलाकाई अवामिल और सिक्योरिटी पर सेमिनार मुनक्किद किया गया। जनरल नदीम रजा ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। सिविल और मिलिट्री क़यादत नेशनल कमांड अथॉरिटी के इस स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। कौमी सिक्योरिटी नाकाबिल तकसीम है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और पुरएतमाद न्यूक्लियर मुल्क है। पाकिस्तान की पॉलिसी फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस है, जो कि काबिल एतमाद एटमी तवाज़ुन के दायरा कार में है। न्यूक्लियर ममालिक में राइज तरीका अमल के मुताबिक सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर रिस्पांस और तबसरा देने की मिजाज है। तहरीक इंसाफ अपनी नाअहली की वजह से हुकूमत से निकाली गई। इमरान खान की हुकूमत ने हर शोबे में तबाही मचाई। मरियम नवाज का सोशल मीडिया टीम से खिताब। कहा फराह गोगी फ्रंट पर्सन थी, असल में फ़ायदा कोई और उठा रहा था। पंजाब में लूटमार और करप्शन का बाजार गर्म किया गया। हर तकर्री और तबादले पैसे लेकर किए गए। सवाल पूछो तो जवाब में इल्ज़ाम आता है। मुल्क को तबाह करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। बुरा हाल है, मैं आपको बता रही हूँ। पाकिस्तान हर शोबे में ऑनेस्टली जितनी तबाही और बर्बादी पिछली हुकूमत इस मुल्क की करके गई है, अपनी गलत प्रायोरिटीज़ की वजह से, अपनी नालायकी की वजह से, अपनी नाअहली की वजह से। और मैं ये बता दूं कि फराह गोगी सिर्फ फ्रंट पर्सन है। बेनिफिशरीज जो है, डायरेक्ट बेनिफिशरीज, वो इमरान खान है और वो बजरिया वो जो पीरनी साहिबा है। अब आपको पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता कि एक एक नौकरी, एक एक तकर्री, एक एक तबादले के लिए जो बनी गाला जिसका हेडक्वार्टर था, उन्होंने कितना कितना पैसा लिया है। तुमसे 4 साल की परफॉर्मेंस पूछ ली अवाम ने, हमने पूछी, जलसों में पूछी, तो उसको प्रेशर फील हुआ कि उसको जवाब देना है, तो पर्ची से पढ़ के भी जवाब देना नहीं आ रहा था। मुझसे पूछो, वो तो 3.5-4 साल का हिसाब नहीं दे सका। मैं अभी आपको हिसाब देती हूँ अपने 6 हफ्ते का। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इस्लामाबाद कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने और कितने ग्रैंड इत्तेहाद बनाने हैं। हुकूमत के साथ वो होगा जो वो याद रखेंगे। हुकूमत घर जाने की तैयारी करे। हुकूमत ने इसी साल घर जाना है। हुकूमत को खौफ है क्योंकि इससे मुल्क नहीं चल रहा। ग्रैंड इत्तेहाद बनाए, 13 तो पहले ही हैं, और कितने ग्रैंड इत्तेहाद बनाने हैं। और जो आप गैस, बिजली, चीनी और जो आप पेट्रोल पे कर रहे हैं, आपके साथ वो होना है कि आप याद रखेंगे। 13 के ग्रैंड अलायंस पे भी आप मुतमिन नहीं हैं। आप तैयारी करें, सामान पैक करें, आपने घर जाना है और इलेक्शन होने हैं। नवंबर पे इलेक्शन देख रहे हैं या उससे मैं पहले? इसी साल में हर सूरत में इलेक्शन देख रहा हूँ और इस हुकूमत ने जाना ही जाना है। और इसी खौफ की वजह से इसको पता है कि ये मुल्क उनसे नहीं चल रहा, इसलिए अब ग्रैंड लाइन्स की बातें कर रहा है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने कहा है कि आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन कराना इदारे की जिम्मेदारी है। इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी में मुख्तलिफ इदारे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करते हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने कहा कि घर घर तस्दीकी अमल 7 नवंबर तक 31 दिसंबर 2021 में मुकम्मल किया गया। 26 नवंबर तक 31 दिसंबर 2021 में SMS सर्विस मुफ्त हुई। मुफ्त सर्विस के तहत 1,34,00,000 अफराद ने मुफ्त सर्विस से इस्तेफादा किया। की तकमील के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के अफसरान और एहलकारान इलेक्शन कमिश्नर की मावनत करते हैं। घर घर तस्दीकी अमल 7 नवंबर ता 31 दिसंबर 2021 में मुकम्मल किया गया। अवाम उन्नास की सहूलत के लिए इलेक्शन कमीशन ने 26 नवंबर से 31 दिसंबर 2021 के दौरान SMS 8300 सर्विस को बिल्कुल मुफ्त कर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंतखाबी फहरिस्तों में अपने या अपने अहल खाना के नामों की मौजूदगी या गैर मौजूदगी के बारे में बासानी आगाही हासिल कर सकें। इस दौरान 1,34,00,000 अफराद ने इस मुफ्त सर्विस से फ़ायदा उठाया। अब कुछ बात करेंगे दुआ जहरा केस की। सिंध पुलिस ने दुआ जहरा को शौहर जहीर के साथ सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया। अदालत ने दुआ जहरा ने इकरार किया कि उन्होंने पसंद की शादी की और किसी ने उन्हें अगवा नहीं किया।
अदालत दुआ जहरा को दारुल अमान भेजने का हुक्म देते हुए उम्र के तयन के लिए मेडिकल चेकअप कराने की हिदायत कर दी है। दुआ जहरा ने वालिदैन से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। दुआ की वालिदा ज़ारो कतार रोती रही। मजीद रिपोर्ट करेंगे नज़ीर मेमन। कराची से मुबैना तौर पर अगवा के बाद बहावल नगर से बाजियाब होने वाली दुआ जहरा और उसके मुबैना शौहर जहीर अहमद को सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। अदालत ने दौरान समाअत दुआ को रोस्ट्रम पर बुलाकर कहा, बेटा आपका नाम क्या है, वालिद का नाम क्या है, उम्र कितनी है, अभी कहाँ रहती हो, आपको अगवा किया गया था। दुआ बोली, किसी ने अगवा नहीं किया था, चिश्तिया में रहती हूँ, 16-17 साल उम्र है। एडवोकेट जनरल सिंध का कहना था कि पंजाब में चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन नहीं है, बच्ची ने वहाँ शादी की है। तहकीकात के दौरान ये चीजें सामने आई हैं कि बच्ची खुद गई है, किसी ने अगवा नहीं किया। लाहौर में बच्चे के वालिदैन ने पुलिस को हिरासत करने के खिलाफ केस दायर किया है। कोर्ट रूम में वालिदैन ने दुआ से बात करने की कोशिश की तो दुआ ने बात करने से इनकार कर दिया। अपने शौहर के साथ हाथ मिलाकर चेहरा दूसरी जानिब कर लिया। दुआ की बेरुखी देखकर माँ की आंखें अश्कबार हुई, ज़ारो कतार रोती रहीं, वालिद भी गमज़दा नजर आए। अदालत ने बच्ची को वालिदैन से मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी और दुआ की उम्र के तयन के लिए मेडिकल चेकअप कराने का हुक्म देते हुए उसे दारुल अमान भेज दिया। दुआ जहरा को पुलिस 8 जून को मेडिकल रिपोर्ट के साथ अदालत में पेश करेगी। नज़ीर मेमन, GTV न्यूज़, कराची। दुआ जहरा के वालिद मेहदी काज़मी के वकील अल्ताफ खोसा कहते हैं कि दुआ जहरा सिंध की बेटी है। इस केस में सिंध का नहीं पंजाब का कानून नहीं चलेगा, जबकि सिंध में 18 साल से कम उम्र की बच्ची का निकाह नहीं हो सकता। मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। यहाँ पर जो बच्ची यहाँ पर पेश भी हुई है, आपने भी देखा होगा कि बच्ची की उम्र इतनी है भी नहीं। बच्ची तकरीबन 15 साल से भी ऊपर की नहीं है, क्योंकि जो मेडिकल सर्टिफिकेट या जो डॉक्यूमेंटेशन है, हमें अभी भी खतरा है क्योंकि पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। ज़हनी दबाव डाला गया, बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया गया है। अब इंशाल्लाह मेडिकल आ जाएगा, ये भी पता चल जाएगा कि मेडिकल किस तरह और कौन सा मेडिकल बनाया के जा रहा है। जिस तरह से निमरा का मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया जा रहा था, या इस तरह का न हो कि कल मेडिकल इसका दुआ जहरा का भी इस तरह का मेडिकल ना आ जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची के हसास इलाके से भी मोटरसाइकिल चोरी होने की वारदातों में इजाफा हो गया। गुज़िश्ता रोज गवर्नर हाउस के करीब से 2 मोटरसाइकिल चोर ले उड़े। CCTV फुटेज सामने आने के बावजूद पुलिस अब तक कुछ न कर सकी। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे वजी उद्दीन। जी वजी। बिल्कुल, इस मेट्रोपोल और गवर्नर हाउस के करीब से भी जो हम देखते हैं कि जो मोटरसाइकिलें चोरी होने की वारदातें हैं उस पर भी जो अब इजाफा हो चुका है। यकीनन तौर पे ये रेड जोन का इलाका और यहाँ पे जो है यहाँ से भी जो है मोटरसाइकिलें चोरी होना जो है एक पुलिस की कारकर्दगी पर जो सवालिया निशान होता है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है इसी इलाके से जो है 2 मोटरसाइकिलें जो है 2 अलग अलग जो है मुलजमान जो लेकर फरार हो गए हैं, लेकिन अब तक जो है पुलिस ने उनकी शनाख्त नहीं की है। यकीनन तौर पर जो CCTV फुटेज भी जो है सामने आ चुकी है, लेकिन पुलिस अभी हम देखते हैं कि पुलिस की जानिब से कोई भी जो है इन मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बायस हम देखते हैं कि जो रेड जोन हिसास इलाका जिसको करार दिया जाता है, वहाँ पे भी जो मोटरसाइकिलें की वारदातें होने से इजाफा हो चुका है और पुलिस की कारकर्दगी पे हम ये भी देखते हैं कि पुलिस की जो सवालिया निशान पैदा हो चुका है और जो शहरी है वो भी सबसे ज़्यादा जो शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि पुलिस क्या कर रही है शहर में। जी। पाकिस्तान मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में डॉक्टर्स मसीहाई के बजाय इंतजामी उमूर सर अंजाम देने में मसरूफ हैं। पिम्स में डॉक्टर्स मसीहाई के बजाय दफ्तरी उमूर निपटाने और आला सीटों पर बराजमान होकर मिलने वाली आसाइशें इस्तेमाल करने लगे। इसी पर बात करते हैं अपनी नुमाइंदा आफ्ताब जहान से। जी आफ्ताब, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में डॉक्टर मसीहाई के बजाय इंतजामी उमूर सरअंजाम देने में मसरूफ हैं। पिम्स में डॉक्टर मसीहाई के बजाय दफ्तरी उमूर निपटाने और अला सीटों पर विराजमान होकर मिलने वाली आसाइशें इस्तेमाल करने लगे। जराये के मुताबिक पिम्स में 9 डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इदारे के अंदरूनी ट्रांसफर के जरिए मुख्तलिफ सीटों पर बैठे हुए हैं। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अरम नावीद डायरेक्टर इंडोर की पोस्ट पर काम करने लगी है, जबकि ये पोस्ट है ही नहीं। इसके अलावा लेडी डॉक्टर अरम नवीद ने प्राइवेट वार्ड में मरीजों के लिए मुख्तस कमरों में से 2 कमरे भी अपने ज़ेरे इस्तेमाल रख लिए हैं। जराये के मुताबिक दोनों कमरों में डॉक्टर और स्टाफ जो है वो इन कमरों को अपने इस्तेमाल में ले आ रहे हैं, जबकि इसके अलावा डॉक्टर हफीज मेमन डायरेक्टर कोऑर्डिनेट सर्विस पर काम करते हुए सरकारी लैंड क्रूजर इस्तेमाल करने लगे हैं। इनके अलावा डॉक्टर रना फातिमा जो कि मेडिकल ऑफिसर की जगह पिम्स अस्पताल में डॉक्टर्स की शदीद कमी है, लेकिन डॉक्टर्स इंतजामी उमूर निभाने में मसरूफ है। आफ्ताब जहां अपडेट करी थी, आपका बहुत शुक्रिया।
پشاور میں وکلا اور ضلع انتظامیہ کے افسران کے درمیان تنازعہ شدت اختیار کر گیا. سرکاری افسران وکلا کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور اس وقت سول سیکریٹریٹ میں احتجاج کر رہے ہیں. مزید بتائیں گے نواب شیر. نواب، اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، سرکاری افسران اور وکلاء کے درمیان معاملہ جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اب جو سرکاری افسران ہے وہ وکلاء کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور اس وقت احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں. میرے ساتھ مظاہرین موجود ہیں، ان سے بات کرتے. جی آپ لوگ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مطالبات ہیں، اور اگر مطالبات نہ مانیں گے تو آئندہ عمل کیا ہوگا؟ جی ڈپٹی کمشنر آفس پشاور کے اوپر جب سیٹرڈے کو جو اٹیک ہوا ہے، جو اس کے اوپر وہاں پر ایک غنڈہ گردی اور دہشت گردی کی واردات کی گئی ہے، اس کی ہم مذمت کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. ہم یہاں پر سرکاری آفیسرز کے تحفظ اور ریاست کے تحفظ کے لیے نکلے ہوئے ہیں. آج ہمارا پورے صوبہ خیبر پختونخوا میں ہڑتال ہے. تمام ڈپٹی کمشنر آفیسز، اسسٹنٹ کمشنر آفیسز اینڈ الائڈ سروسز وہ بند ہیں، اور آج ہمارا یہ ٹوکن ہڑتال ہے. اگر ہمارے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ہم اس کا دائرہ کار بڑھانے پر مجبور ہوں گے. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ آج پورے صوبے میں جو ہے وہ سرکاری دفاتر بند ہے، اور اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ مزید سخت احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. جی KBK میں خشک سالی کے باعث 8 مقامات پر آگ لگی ہے. سوات کی تحصیل چارباغ میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. ادھر بونیر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 9 دن سے لگی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا. آگ سے جنگلی حیات اور جانور جل گئے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. سوات میں گزشتہ روز سے اب تک 8 مقامات پر پہاڑوں پر آگ لگ چکی ہے. 4 دن میں تحصیل بریکوٹ، تحصیل کبل، تحصیل چارباغ اور ملکہ پہاڑوں پر آگ بھڑک اٹھی. آگ پر قابو پانے کے لیے ریسکیو رضاکار، پولیس اور سول ڈیفنس کے ساتھ پاک فوج کے دستے بھی خدمات انجام دے رہے ہیں. آج صبح بھرا بانڈی ناجیہ ٹاپ کے پہاڑ پر بھی آگ لگ گئی. DC سوات کے مطابق سوات کے پہاڑوں پر آگ لگنے کے واقعات کی انکوائری کر رہے ہیں. اس سلسلے میں مختلف ایجنسیوں اور پولیس آفیشل پر مبنی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے. بونیر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 9 دن سے لگی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا. ایلم، گوندن، کلیل اور دیگر علاقوں میں آگ سے جنگلی حیات اور جانور جل گئے. بونیر کا تاریخی پہاڑ ایلم اپنی خوبصورتی کھو بیٹھا. پہلے درہ گوند کے پہاڑوں پر نامعلوم وجوہات کی بنا پر آگ لگی، جس پر اب قابو پایا جا چکا ہے. متاثرہ علاقوں کے عوام نے آگ پر قابو پانے میں مدد کی اپیل کی ہے. اسلام آباد انتظامیہ اور وائلڈ لائف حکام کی غفلت یا شہریوں کی غیر ذمہ داری. مارگلا ہلز پر آگ لگنے کے واقعات میں اضافہ ہو گیا. 3 بار آگ لگنے کے نتیجے میں سینکڑوں درخت جل کر خاکستر ہو گئے، جبکہ کئی جانوروں کی ہلاکت کا بھی خدشہ ہے. مزید بتائیں گے صالح عباسی. جی صالح. جی بالکل، اسلام آباد انتظامیہ یا وائلڈ لائف حکام کی غفلت کہیں یا مارگلا ہلز پر آنے والے سیاحوں کی غیر ذمہ داری، اسلام آباد کی مارگلا ہلز پر آئے روز آگ لگنے کے واقعات اب معمول بن گئے ہیں. اس سمر سیزن میں مارگلا ہلز پر 3 بار آگ لگ چکی ہے، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں قیمتی درخت جل کر خاکستر ہوئے، جبکہ متعدد جنگلی جانوروں کی ہلاکت کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے. یہ جو حالیہ آگ لگنے کا واقعہ ہے یہ ہفتے کے روز کا ہے، جب اسلام آباد کی مارگلا ہلز پر ٹریل 5، ٹریل 3 اور جو تلہاڑ گاؤں ہے اس کے اطراف آگ لگی، اور جس کے نتیجے میں کئی قیمتی جو ہے وہ درخت جل کر خاکستر ہوئے، جبکہ ساتھ ساتھ ہمیں کئی جنگلی جانوروں کی ہلاکت کا خدشہ بھی جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے. تو آگ لگنے کا جو یہ واقعہ ہے اس میں اسلام آباد کی انتظامیہ، وائلڈ لائف کے حکام، NDMA اور پاکستان آرمی کے ہیلی کاپٹرز نے آگ بجھانے کا جو عمل تھا اس میں حصہ لیا، اور بالآخر تینوں شعبوں اور اداروں کی مشترکہ کاوش کے بعد اس آگ پر قابو پایا گیا. یہاں ٹریل 5 اور اسلام آباد کی مارگلا ہلز پر آنے والے شہری بھی یہی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ اسلام آباد کی انتظامیہ کو مارگلا ہلز کو آگ لگنے کے واقعات سے بچانے کے لیے کوئی مؤثر اقدامات اٹھانے چاہیے، تاکہ آگ لگنے کے جو آئے روز واقعات ہیں ان کا سدباب کیا جا سکے. جی ویلکم بیک. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کمر توڑ مہنگائی اور بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے پشاور کے تاجروں کا صبر بھی جواب دے گیا. مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے. مزید تفصیلات عبدالرحمان کی رپورٹ میں. ملک میں جاری مہنگائی اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے پشاور کے تاجروں کا پارا ہائی ہو گیا. قصہ خوانی بازار میں تاجر سڑکوں پر آ گئی. تاجروں نے مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کی دہائی دی.
महंगाई की वजह से यकीन करें हमारा कारोबार ठप हो गए। हमारा जितना भी जो प्रेस इंडस्ट्री है जो हम काम कर रहे हैं उसमें यकीन करें कारोबार इतना ठप है कि दुकानदार परेशान है रिज़्क के लिए कि रिज़्क उसको नहीं मिलते। मुजाहिरीन का कहना था कि 8 घंटों में 5 घंटे बिजली नहीं होती। प्रेस मार्केट में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। हम जो पेपर पहले लेते थे अगर 100 रुपये का पैकेट लेते थे अभी 200-300 रुपये का ले रहे हैं। हम रात को एक रेट देते हैं गवर्नमेंट को, सुबह उठते हैं उसका रेट दूसरा होता है। क्यों कि दिन पर दिन महंगाई हो रही है। गैस, बिजली, पेट्रोल ये किधर जा रहा है। टैक्सेस हम पेड करते हैं, टैक्सेस हम पे डाले जाते हैं, हमारी पैसों से हम पे टैक्स दोबारा लागू किया जाता है। एहतजाज करने वाले ताजरों ने हुकूमत से महंगाई में कमी और लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन सुहेल राना के साथ अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। लाहौर में हर घंटे बाद बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सख्त गर्मी में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले सिक्योरिटी गार्ड महंगाई और गर्मी में कैसा गुजारा कर रहे हैं, अहवाल बताएंगे वकार शौकत। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही बिजली के इस्तेमाल में भी जो है वो इजाफा हो रहा है और ख़ास तौर पे जो बिजली की फराहमी है उसमें कमी की वजह से जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला लाहौर में रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहा है। हर घंटे बाद जो है वो बिजली जाना मामूल बन चुका है और ख़ास तौर पे बिजली जाने से उन लोगों को परेशानी है जो सारा दिन बाहर काम करते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे साथ मौजूद हैं जो कि सारा दिन सड़कों पर ही और हिफाजती इक़दाम के लिए बाहर रहते हैं। अच्छा बताइए, पंखा बंद है, शदीद गर्मी है, तो कैसे गुजारा? बहुत मुश्किल है सर, हम बता नहीं सकते कि कैसे बैठे हुए हैं और हमारी तनख्वाह भी बहुत कम है और महंगाई इतनी है कि हम बता नहीं सकते। इतनी सख्त गर्मी है, जून का महीना है, कोई तरस नहीं खाने वाला। हर घंटे बाद बिजली जाती है, घर जाते हैं घर भी बिजली नहीं होती, इधर बैठे हैं धूप में आपके सामने, बहुत परेशानी है। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर मेरे साथ एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे जिनका ये शिकवा है कि यहाँ पर भी बिजली जो है वो हर घंटे बाद जा रही है, सख्त गर्मी है और बाहर रोड पर ही सारा दिन बैठना पड़ता है। घर पर जाएं और वहाँ पर भी जो है वो बिजली ना आने की वजह से ख़ुद तो परेशान होते ही हैं, साथ में बच्चों को भी परेशान देखते हैं। इनका ये भी शिकवा है कि तनख्वाहें भी बहुत कम हैं और महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। जी, और लगता है कि इस बजट में भी आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। IMF की एक और कड़ी शर्त पर अमल दरामद किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बजट में इनकम टैक्स की रियायतें और मराहत खत्म की जाएंगी। ऑनलाइन और सोशल मीडिया से आमदन पर टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया है। इलेक्शन कमीशन ने DPO झंग हसन असद अलवी के फौरी ट्रांसफर का हुक्म भी दे दिया है। अपडेट आपको कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया है। वकार अली सैयद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। वकार, अपडेट कीजिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या अहकाम जारी किए हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि 17 जुलाई को पंजाब के 20 हल्के हैं जो डिसीटेड अराकीन थे उस पर दोबारा इलेक्शन होना है, तो इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को एक खत लिखा गया जिसमें जो DPO जंग है हसन असद अलवी को फौरी तौर पर ट्रांसफर करने का जो है वो हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन ने साबिक DPO सियालकोट हसन अलवी को की इलेक्शन ड्यूटी पर पाबंदी जो है वो आयद की थी। ये NA जो 75 डस्का में जो ज़िमनी इलेक्शन में जो मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाई हुई थी उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो जामिया फैसला है तो उसमें कहा गया था कि हसन असद अलवी को किसी भी इलेक्शन ड्यूटी पर जो है वो उनकी जिम्मेदारियां जो है वो तैनात नहीं की जाए। लेकिन खत में ये भी कहा गया कि हमारे मुशाहिदे में है कि ये जो DPO इस वक्त हसन असद अलवी जो है वो DPO जंग के तौर पर जो है वो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। जबकि पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया है। वकार अली सैयद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।